ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ। ਓਏ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਧਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਰੇੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊਡਲ ਖਿਲਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਓਏ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ? ਕੱਢੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। मिस्टर ओबामा, हमारे साहब का नाम तमीज से ले, क्योंकि हम उनकी शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ਓਏ ਜੇ ਉਹ ਵਲੈਤੀ ਵਹਿੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੁੱਕੜ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾ ਵੇਚਦਾ, ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ओहो, अब क्या इल्जाम लगा दिया सर? हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे ही सही। वो बीबी इल्जाम की लाना है? ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 1.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਟਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਡਾਲਰ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ, ਉਹ ਕੱਢਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਬੇਅਦਬ ਆਦਮੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਤਕਬਰਿਆ ਆਦਮੀ ਏ। ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੱਢਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। मिस्टर ओबामा, वो एक इम्पोर्टेंट दौरे से आए हैं, थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ਉਹ ਤੇ ਸਾਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। सर नींद भी इंसान को ही आती है। आपने वो मुहावरा नहीं सुना हुआ, नींद तो सूली पे भी आ जाती है। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੌਰੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। डांस का तो उनको वाकई बड़ा शौक है। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਦਾਰਤ, ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਾ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਾ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਗਾ ਤੇ ਖੈਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨਾ ਕਹੀ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਗ 'ਚ ਡਾਲਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਓਹ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਓਏ ਜੁਬਾਈਡਨ ਭਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਚੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਆਪ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਓਏ ਕਿਸੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ ਖੋਤਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਰਾਨ ਚ ਬੈਗ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਨੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਦਰ ਆ ਕਿ ਮਲੰਗਾ ਡਾਕੂ ਆ? ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਇਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਯੂਰਪ ਭੇਜਣਾ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸੱਚ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਉੱਡਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੋਰੀ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਇਦੇ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਏ ਆ ਇਰਾਨ ਵਾਲਿਓ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੁਲਖੋ, ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੋ ਮੁਆਇਦਾ, ਆ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਥਿਊਰ ਕਿੱਥੇ ਲਕਾਏ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਤਕਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਛੱਡਾਂ। ਹਾਏ ਓਏ ਉਣਤੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਇਰਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਸਕੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਇਰਾਨ ਵਾਲਿਓ ਢੰ 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 ਢੰ। ਉਹ ਟਿਕ ਜਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨਗਮਾ। ਆ ਰਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਇਰਾਨ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ, ਮਾਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਂ, ਕਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਵੇਖੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਣ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਿਕਾਗੋ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ। ਇਹ ਗॉड ਦੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਨਾ ਮਰਾਦੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸਲੀਪੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਬਹਾਇਆ। ਹਾਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਧਾ ਨਚਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ सारी दुनिया च रौला पवाता है। हाय यही तो बॉस का कारनामा है। तुम लोग सड़ो सड़ो सड़ो, बल्कि उठ के डांस करो। मैं सड़ गई मैं मर गई नेड़े जालिमा वे मैं सड़ गई मैं मर गई तेरे सदके जावा। क्या बात है, मैं आना के कट कड़ाके दिते नहीं। कादे कड़ाके कड़, शर्म करो, ओ कुछ शर्म करो। ओ सुपर पावर दे सदर दा तू गाड़ है ते स्टेप तू ओ ला रहे जित 10 रुपए तो वध वेल नहीं हुंदी। चढ़दे पोते नु गुस्सा ना कर, ये पागल हो गए आ। ਇਹਨੇ दरअसल ना टीवी दे उत्ते मेरा चीन दा दौरा वेख लिया। पुत की दसां मैं तैनूं, आ चीन दे सदर शी ने मैनू उस जगह की सैर करा छड्डी है जिहड़ी इस नामराद ने टीवी ते भी नहीं वेखी होनी। ओ मैनू ते उस बाग च भी लैके गए आ जिथे 1000 साल पुराने पौधे लगे आ। अच्छा ओए ਅਸੀਂ नहीं टीवी देखते, ਅਸੀਂ मजहबी लोग आ। ओ बगलोल जा जाके टाइम स्क्वायर जाके गोलगप्पियां दी रेहड़ी ला। ओ चाइना ने तेनू वेला बंदा समझ के ना ते बाग बूग पार्का पुरका विखा के ते वापस भेजता है। जिवें लाहौरियां दा कोई पेंडू कजन आवे ना ते ओनू बागे जनाब विखा के ते वापस भेज दिंदे आ।
ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEO ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੰਗਰ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਚੀਨ ਏਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 200 ਬੋਇੰਗ ਤਿਆਰੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਚੀਨ ਨੇ ਪੁੱਤ। ਲਿਸਟਾਂ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਾਏ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਾਡੀਆ ਆਦਮੀ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਟੋਪੀ 'ਚ कबूतर भी ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। एक्सक्यूज मी, वो तो बहुत स्कूलों में फन के तौर पे किया करते थे। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਵਕੀਲਾ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਡੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿੱਠਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੰਭ ਚੜ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਇਸਤਕਬਾਲ। ਹਾਏ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਇਆ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਹਲੇ ਤੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਾ ਜਾਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਇਸਤਕਬਾਲੀਆ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ ਪੁੱਤ ਸੈਂਕੜੋ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਸ ਫੌਜ 'ਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਜਰਾ 200-300 ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮਲ-ਮਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂ AI ਤੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਸਭ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੱਕ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜਾਮਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤ ਆ ਘੜੀ ਘੜੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਲ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਰ ਜੀ ਹੋਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਪ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਈਆਂ ਲੱਸੀ ਰੜਕ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਵੀ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ। सर आइंदा आपने मुझे जरूर लेकर जाना है। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ ਖਾਣੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਡਏ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਹਾਲੀ ਮੁਆਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਗ ਬੂਗ ਫਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ। हाय लो नहीं ये बात तो ठीक है मिस्टर ट्रंप। 2017 के दौरे में चीन और अमेरिका के दरमियान 250 अरब डॉलर के मुआहदे हुए थे, बट इस दफा चीन ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚਾੜਨ ਵਾਲਿਆ ਖਚਰਾ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। हाय ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਉੱਠਣ ਡਈ ਆ, ਇਹ ਮਰੋੜ ਪਏ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਾ ਗਿਆ। हाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤ। लो ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਤੂੰ ਮਿਡ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣ ਡਏ ਨੇ। हाय ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੇ ਇੰਜ ਡਿੱਗੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁੱਢੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ।
ਵਾਓ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਫੜੋ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬੌਸ ਨਾ ਫੜਨਾ, ਬੰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। Oh my God! Bum! ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ? यार मेरे तो निके निके बच्चे ने। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਮੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾ ਮਰਾਦ ਦੱਸੋ, ਬੰਬ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। ਹਾਏ ਓਏ ਆ ਕੀ ਹੈ ਵੇਚਾ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਤੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮਬੂਲ? ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਭੁੱਲ ਆਏ ਸੋ, ਉਹ ਦੇਣ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸੂਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਜਸੂਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਭਰਾ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਪ ਦਾ ਡਰਿਆ ਬੰਦਾ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਈਨਾ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਓਏ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਦਿਆ ਕਾਰੀਗਰਾ, ਇਹ ਕੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਤੋਹਫੇ ਤਹਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ? ਹਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਆਇਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕੁਛ ਨਾ, ਗਲਾਸ ਤੋੜਾ 12 ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਓ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਭਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। क्या कर रहे हो? अमेरिका का प्रेसिडेंट गेमें खेलेगा? ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਪਤਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਮੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਮੋਟਿਆ ਗੱਬਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਮਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। सर सामान वापस ना भेजें, मेरा छोटा बेटा खेल लेगा। सर वैसे भी किसी का भेजा हुआ तोहफा वापस नहीं करते। ਜੀ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਖੋ ਛਾਪਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਮਾਮੂ ਤੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦੀ ਔਕਾਤ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। हाय ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। वाकई किंग चार्ल्स अभी अमेरिका के दौरे पर आए हुए थे तो इन्होंने मिसबिहेव किया, प्रोटोकॉल तोड़ दिए और दुनिया को हंसने का मौका मिल गया। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ ਤਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਨਾਨ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाय ਕਦੀ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਨਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਤਿਲ ਵਾਲੀ ਦੌਰੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਸਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ? ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਧੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਮਮਾਨ ਟੋਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਟਾਇਰ। हाय ਆ ਪੁੱਤ ਮੇਰਿਆ ਬੇਟਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹੁ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਖਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਹਫੇ ਸ਼ੋਵੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਡੰਗਰਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੂਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਦ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ? ओह ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। हाय ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਤਬਾਹ ਪਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਢੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਐਵੇਂ ਬੇਰ ਜਿੱਡੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਣੇ ਜਿੱਡਾ ਚੀਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। देखा, ये दुनिया में अमन नहीं चाहता, सिर्फ अपना फायदा चाहता है। हाय 11 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਅੰਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। हाय ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਗੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।
ਇੱਕ ਅੰਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਹਾਏ नाज़रीन, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। आपको जो आज जबरनामे में खबर सुनाना चाह रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। जी शायर कहता है, हमें तो आमों ने लूटा, दुआनों में कहां दम था। हमें तो आमों ने लूटा, दुआनों में कहां दम था। हम पकड़े वहां गए जहां जुर्माना ज्यादा और अकाउंट में बैलेंस कम था। आज की जो आपको खबर पेश खिदमत कर रहा हूं, जो आम के रसिया लोग हैं, यानी आम खाने के शौकीन आदमी हैं, जी उनको जरा पकड़ के रखिएगा, ये ना हो कि खबर सुन के वो टीवी में टक्कर काट मारे। जल्दी से सुना दो आमों की खबर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें टक्कर काट मारूं। नाज़रीन, खबर कुछ यूं है, सिंगापुर में दरख्त से गिरा हुआ आम उठाने पर भी 11 लाख रुपए तक जुर्माने की वार्निंग जारी कर दी गई। सिंगापुर कानून के मुताबिक सड़क किनारे या किसी भी पब्लिक प्लेस पर लगे दरख्त से ना तो आम तोड़कर खा सकते हैं और ना ही जमीन पर पड़े आम को उठाया जा सकता है। अगर किसी ने उठाने की कोशिश की तो उसे 5,000 सिंगापुरी डॉलर यानी पाकिस्तानी 10,94,000 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ਓਏ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਈ ਜ਼ਾਲਮਾ, 11 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਅੰਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਗੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਹਾਏ ओ भाई असी पाकिस्तानी आम भी नहीं, शतूत बेर जामन अमरूद सब कुछ खा जाने नहीं थैला साहब, सिर्फ अमरूद शतूत ते अंब ही नहीं, पाकिस्तानियों की जो गल करो तो स्टील मिल खा गए, PIA खा गए, रेलवे खा गए, और कुछ रह गया तो उन्होंने खाने लिए टीमां तैयार ने। लेकिन सिंगापुर में कानून है कि सड़क या किसी भी पब्लिक मुकाम पर जी लगे हुए दरख्त के ऊपर से फल तोड़ना या जमीन पर गिरे हुए फल का उठाना जुर्म है। वाह वाह और जुर्माना तो मैंने आपको बता ही दिया है, 11 लाख रुपया। मगर अजीजी तू सिंगापुर वाले ना गल ते कर यार, जेड़ा जमीन ते डिगा अंब है वो तो चुकन दे सानू ना उधर तो कोई अंब नीचे गिरा हो ना जी, जी तो बंदे खड़े होकर बेचारे पहले अंब को देखते हैं, फिर सज्जे खब्बे देखते हैं, हाय फिर अंब को देखते हैं, फिर सज्जे खब्बे देखते हैं, फिर अखीर अंब नूं कह के जाते हैं जी 11 लाख रुपया ना जुर्माना होता तो फिर मैं तेनों दसदा। और अगर कोई जुर्रत करके तो अंब को हाथ लगा दे जी तो अंब फौरन आगे से कह देता है, एक्सक्यूज मी, वो देखो सामने कैमरा और हाथ हिला दो। अगला बेचारा हाथ लांदा ते अंब कहंदा कड्डो हुण 11 लाख रुपया। ਯਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੂੜ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यार या तो उन्हें शुगर होनी है या डॉक्टर ने उन्हें आम खाने तो मना किया होना है। मैंने तो लगता है जिस अफसर ने ये जुर्माना अनाउंस किया है ना, वो राती घर जाते सारे हम इकट्ठे करके ले जाता है। और यार आप लोग तो सिर्फ आम को रो रहे हैं ना, दुनिया में अवाम को रोकने के लिए ऐसे ऐसे जुर्माने और ऐसे ऐसे कवानीन बनते हैं कि आप सुन ले तो आपके कानों में तो खैर आपके अब धुआं निकलता ही नहीं। क्योंकि साडे पाकिस्तानियों दे ते वैसे ही अंगीठियां बुझ गई हैं। साडे मुल्क च ते सब तो आम ये समझा जाता है कि जिथे वाईफाई लभे फटाफट मोबाइल कनेक्ट कर लो। लेकिन सिंगापुर में बगैर इजाजत के किसी के वाईफाई से कनेक्ट करने पर 10,000 सिंगापुरी डॉलर जुर्माना है। अच्छा जी हाँ, उन्होंने हैकिंग जैसे जुर्म से बचने के लिए ये कानून बनाया है वाह वाह कि कोई बंदा दूसरे का वाईफाई इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही साडे ते इत्थे रक्शियां वाले भी आवाज ला रहे होंदे ने, वाईफाई वाले रक्शे च वाईफाई दी सहूलत है, आयो बैठो बीबी जी, बीबी जी आओ तो सही है, देखो मेरा वाईफाई भी चलन दे, आजो आजो। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਚੂਸ ਗਿਆ। यार अजीजी सिंगापुर ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਅੰਬ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। हाय ऐसी कोई बात नहीं गौरी साहब, सिर्फ सिंगापुर ही नहीं,
और मुल्कों में भी बड़े बड़े अजीब कामों पे जुर्माने आयद किए जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, बर्तानिया के इलाके कैम्ब्रिज में एक मिफ्ता नामी नौजवान को आहिस्ता खाना खाने पर 100 पाउंड यानी 37,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ा। आहिस्ता खाने से? गौर से पढ़े, तेज खाने से होगा। यार मेरा ख्याल है प्लेट में ज्यादा खाना डालने पे होगा। नहीं भाई जी, आहिस्ता खाने पे। खबर पढ़ के मुझे भी लगा कि यारे होटल वाले पागल तो नहीं, सानू तो साडे वड्डे कहते ने बेटा खाना हमेशा सुकून और आराम से खाएं। डॉक्टर भी यही कहते हैं, बल्कि डॉक्टरों ने तो आहिस्ता खाना खाने के फवायद ही इतने बता दिए हुए हैं कि बंदे को लगता है कि यार 1.5-2 घंटे से सिर्फ नाश्ता होना चाहिए। वैसे गोगा तो खैर आहिस्ता खावे ते भावे तेज खावे, इनू 2.5-3 घंटे लगते ही ने। और मुझे लगता है कि इस बरतानवी शहरी को भी इसके दादे या नाने ने मशवरा दिया होगा कि बेटे आहिस्ता खाना खाना है। मगर उस बेचारे को दादे की नसीहत महंगी पड़ गई। मगर यार इस खबर की जरा डिटेल तो बताओ। डिटेल कुछ यूं है गौरी साहब कि ये मिफ्ता नामी जो इंसान है, जी जी, ये किसी रेस्टोरेंट में अपने भाई के साथ गया खाना खाने। अच्छा। उधर बैठ के इन्होंने गप्पे शप्पे मारनी शुरू की। देख लेनी है यार आर्डर काली का दिए उन्हें आ जाता सारा कुछ। अच्छा। लो जी, फिर इन्होंने ऑर्डर भी दिया, फिर आराम से बैठ के खाते रहे, साथ बड़े आराम से बातें शातें करते रहे। ये दोनों भाई 90 मिनट से ज्यादा वक्त रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाते बातें करते रहे। अच्छा। अब उस रेस्टोरेंट की पॉलिसी है कि वहां 90 मिनट से ज्यादा की कार पार्किंग नहीं मिलती। यानी अगर आपने 90 मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी गाड़ी उधर पार्क की है, हाँ जी, तो आपको 100 पाउंड जुर्माना हो जाए। बस होटल वालों ने इसी पॉलिसी के तहत जुर्माना आयद कर दिया। सही। और ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जुर्माने की चिट भी उस नौजवान को वसूल हो गई। बड़ा चीखे आ गई यार, तो अड्डे होटल च कद ले आ गए हैं और बड़े बहाने भी उन्होंने लाए ने कि भाई जी हड्डी चो मिख नहीं सी निकल रही। पौना घंटा तो मैं हड्डी इंजन करदा रहा। वो गोरे लोग थे, उन्होंने कहा आई डोंट नो व्हाट इज द मिख एंड हड्डी। फिर उन्होंने ये भी बहाना लगाया कि जनाब हमने इतना ज्यादा खाना मंगाया है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके गाहक जो है वो गोगा टाइप है। उन्होंने कहा नहीं भाई जी, वो सारी चीजें अपनी जगह, मगर कानून यही है कि 90 मिनट से ज्यादा पार्किंग में गड्डी खड़ी नहीं हो सकती। सही। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਅਫਗਾਨੀ ਕੜਾਈ ਖਾਧੀ। बड़ी जालिम दुनिया यार है, किसी ਨੂੰ रोटी खाने वेख ही नहीं सकती। नहीं मुजफ्फर, तुम्हें तो मेरा ख्याल है इसलिए नहीं देख सकते कि उनका हासा निकलता है। क्योंकि मैंने खुद 1-2 दफा देखा मुजफ्फर को रोटी खाते हुए, भैड़िया जुती ला के ते बोटी दे उत्ते चढ़े है। और मैं क्या होया कि ये कहंदा यार टुटन नहीं सी गई। ओ माय गॉड, पहले तो मेरा वीजा नहीं सी लग रहा, हुण ये खबर सुन के ना मेरा इंग्लैंड तो वाकई दिल चढ़ गया। गोगे तुम्हारा तो अब इंग्लैंड से दिल चढ़ा है ना, जब तुम पहली दफा इंग्लैंड गए थे ना, इंग्लैंड वालों का तुमसे उसी वक्त दिल चढ़ गया। ओ यार रोटी भी नहीं खान देंदे सुकून नाल, जुर्माना कर देता है। अच्छा, ये जुर्माने सिर्फ खाने पीने पे या मोबाइल पे या सिर्फ आम उठाने पे ही नहीं होते। जी सर। अपने मुल्क के अंदर तो जहां मर्जी थूक लेते हैं, राह जाते हुए सड़कों पे, फुटपाथों पे, पार्कों में। हाँ जी। मगर आप हैरान होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है ना ब्रिस्बेन, जी, वहां पे अगर आप कहीं फुटपाथ पे या सड़क पे थूके तो आपको $4,000 जुर्माना हो। ओए ओए ओए। $4,000? और वो आम बंदे का बता रहे हैं, अगर तुम थूकोगे तो तुम्हें $16,000 होगा। ओ यार मेरा तो खबर सुन के ही मुंह खुश्क हो गया। मिर्जा साहब, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि शो करके वापस सीधा वांडो चले जाया करें। ओ जी साहब, इन्हां अंग्रेजी मुल्कां नालों वांडो ही चंगा जे। जिदी मर्जी पैली चो दुहाना तोड़ लईदा, खरबूजा तोड़ लईदा, गन्ना तोड़ लईदा, गाजर पुट लईदी है, सिर्फ दूरों एक गाल कटदे ने बस। नहीं, वैसे ईमान से वाकई ये मजाक की बात नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे मुल्क के अंदर तो मौजें लगी हुई हैं आवाम की। हाँ जी सर। गांव हमने भी देखे हुए हैं, हम भी गांव के रहने वाले लोग हैं। क्या बात है भाई, आप बकायदा अगर पूछ लेना जी
तो वो कहती है जी बढ़ जाओ फसल च, कोई गल नहीं, बढ़ जाओ बाग च, खा लो जिन्ने मर्जी किन्नो। ये अभी कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त की तरफ गया हूँ सरगोदे, अच्छा, उनका किन्नुओं का बाग था। हाय 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 हाय, मैं इंज करके किन्नो वेखे न लगे तो मैं नहीं कुछ सोचा, किन्नुआ ने मैंने खुद क्या है कि ये आओ इधर बैठो। ऐसे प्यारे लग रहे थे लटके हुए किन्नो। फिर मैं चला गया, मैं कौन किन्नो मासूम हुंदा है, ਇਹਦੀ मोड़नी नहीं चाहिए। तुम यकीन मानो अपना गोगे जी, हल्का हल्का तुम जेलस भी महसूस करोगे। मैंने बाग में घुस के को कम से कम 1.5 दर्जन किन्नो खाए हैं। वाह वाह वाह। और वो वाले किन्नो जो एक्सपोर्ट होते हैं, बाहर भेजने वाले किन्नो मैं खाते नहीं। मैं यार 2-3 दर्जन नाल भी ले आउणी सन। अजीजी हमारे गांव में गुड़ बनता था, मैं निका जो नसा कच्चा पा के मैं जाके ताई खलोई ना सोते। थोड़ी देर बाद वो पेसी चौक के मैनू मारता सी, फड़ ओए नजर लाउणी। यार हमारे मुल्तान में शहर के करीब आमों के बाग हुआ करते थे। मैं हम बचपन में जाया करते थे तो वो लोग कह देते थे कि भाई देखो जो यहाँ बैठ के खाओगे उसके पैसे नहीं होंगे, जो साथ लेकर जाओगे उसके पैसे दे के जाओगे। वाह जी वाह। हाँ हाँ, वाकई यही असूल होता था कि जी बाग दे विच बैठ के जिन्ने मर्जी खा लो, अंब तुहानू फ्री ने। इसी असूल के तहत फिर जो थैले हैं ना, इनके घर जितने भी मेहमान आते थे ना, वो जो कभी कहते सन कि यार अंब ते लियाओ खाइए, मुल्तान दे अंब बड़े मशहूर ने। थैला कहता ही हजूर आ जाओ फिर चल के बाग ची बैठ के खाने हैं। मेहमानों को नहीं था बताता कि क्या असूल है। उथे जा कहता ये इत्थे ही खा लो रज के, घर लेके जाइए ना तो फिर बस ही हो जाते। 10 किलो अंब उत्थे बह के खा जांदे सी ते आधा किलो लैके ओदे पैसे दे के आ जांदे सी। हाँ, और अगले दिन सारे महल्ले में बताता था कि राती असी 10.5 किलो अंब ले आंदे ने, आधा किलो छापर च पा के ले आंदे ने ते 10 किलो ढिड च पा के। किस कदर बेवकूफ है कि मैं उसके सामने बैठ के अक्लमंद लगने लग गई। ही इज लकी फॉर मी। मैं तो लार्ज फूल थी, वो एक्स्ट्रा लार्ज फूल निकला। वेलकम वेलकम। जी आया नु जी। मीरा जी बड़ी देर बाद आई हैं आप हमारे शो में। बस आपको तो पता है कि फिल्म स्टार्स के पास टाइम नहीं होता। खास तौर पे मैंने जब से ये फिल्म की है ना साइको, जी सम नॉट वर्किंग वेल, कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे ऐसे स्ट्रेंज एंड पुअर वाकयात पेश आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जी ट्रेंज, स्ट्रेंज एंड पुअर, अजीबो गरीब। गरीबा 2 जमातें पढ़ लेते तो इंग्लिश समझ आ जाती ना। और तौबा तौबा, जब से मैंने इसका पॉडकास्ट किया है ना, सायरन हॉर्स इरशाद भट्टी का। मीरा जी ये ब्लैक हॉर्स तो सुना है, ये सायरन हॉर्स क्या होता है? सायरन हॉर्स घुग्गू घोड़ा। एंडू, आप लोग तो सिर्फ यही कहते हैं ना, खोल लो रोजा घुग्गू बज गया। शहरों में घुग्गू को सायरन कहते हैं। इतना मैं मुश्किल में आ गई हूं इस इरशाद भट्टी का पॉडकास्ट करके। देखो नाम रखा हुआ है इरशाद, कोई आवाज मारे तो फौरन शेर सुनाने शुरू कर देते। ऐसा इसने इंटरव्यू किया है कि हर बंदा मुझे फोन कर रहा है, बेल पे बेल, बेल पे बेल। तंग आ गई मैं तो फोन उठा उठा के। फिर मुझे किसी फ्रेंड ने कहा कि तुम फोन बदल लो। मेरे पास i16 था, मैंने अब i17 ले लिया, फिर भी बेलें बजती जा रही हैं। ओहो मीरा जी, फोन बदलने से उनकी मुराद थी कि सिम बदलें। ओ, मैं किरलिया पहले कितने से हैं? अब मैंने 5.5 लाख खर्च लिया है, तो आप बता रहे हैं 100 रुपए की सिम आती है, वो बदल लेती तो जान छूट जाती। चले मीरा जी अब नंबर बदल लें। नंबर नहीं मेरा कोई बदल सकता, आई एम नंबर 1। जान ही नहीं छोड़ते। एक आर्टिस्ट अगर नई इंटरव्यू गिव करना चाहता तो आप क्यों तंग कर रहे हैं? पीपल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट कमिंग टू मी। जी मेरा मतलब है लोगों की मुझे समझ नहीं आती।
जिया तुम तो इंग्लिश पढ़ लेती, तुम्हें क्या हो गया? मीरा जी आप लोगों को छोड़े, हमें बताएं कि इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं उसके हवाले से आप हमें कुछ बताएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगी। गौरी साहब मैं तो बड़ी हैप्पी हूँ, क्योंकि लोग मुझे लार्ज फूल समझते थे, बड़ी बेवकूफ। मगर देखे इरशाद भट्टी किस कदर बेवकूफ है कि मैं उसके सामने बैठ के अक्लमंद लगने लग गई। ही इज लकी फॉर मी। मैं तो लार्ज फूल थी, वो एक्स्ट्रा लार्ज फूल निकला, बल्कि एक्स्ट्रा लार्ज फूल विद चीज। मगर मीरा जी कुछ तो जवाब देना। भाई आप तो खुद इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इस सवाल का जवाब बहुत लंबा है। बल्कि मैं समझती हूँ फिल्म मेरा नाम जोकर है जितना लंबा है। तो जैसे सिर्फ लंबा होने की वजह से मेरा नाम जोकर है फ्लॉप हो गई थी, कहीं मेरा आंसर भी फ्लॉप ना हो जाए। और वैसे भी आई एम नॉट प्लेइंग लेडी कार्ड, मैं औरत कार्ड नहीं खेल रही। देखिए आई एम वन लेडी, आई मीन मैं अकेली औरत हूं, जब से स्ट्रगल कर रही हूं। माई ट्रेवल इज फ्रंट ऑफ ऑल। जी मेरा मतलब है मेरा सफर सबके सामने है। इसलिए मैं तो तमाम स्ट्रगल पफ लोगों की इज्जत करती हूँ। स्ट्रगल पफ मेहनत कश कदी तू कश लाया होवे ते तेनू पता होवे ना अंग्रेजी च ओनू पफ कहंदे ने। इसलिए मैं समझती हूँ कि इरशाद भट्टी साहब भी स्ट्रगल पफ इंसान हैं, मैं उनकी माजरत कबूल करती हूँ। मैं अब सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी फिल्म आ रही है, मैं अपील करूंगी लोगों से कि आप मेरे साथ ताउन करें। मीरा जी फिल्म च की तावन करन, वो तो बन गई है। गौरी साहब मैं फिल्म देखने की अपील कर रही हूँ, कुछ चंदा मांगने की अपील नहीं कर रही। कहना ये चाहती हूँ कि जितनी भी वर्किंग लेडीज हैं आपको चाहिए कि उनको अप्रिशिएट करें। देखिए मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, मरियम नवाज साहबा भी वर्किंग लेडी हैं। आप उनको अप्रिशिएट करती हैं तो मुझे भी अप्रिशिएट करें। वो गवर्नमेंट में काम करती हैं, मैं फिल्मों में काम करती हूँ। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह अंजलिना जूली हॉलीवुड की क्वीन है, माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की क्वीन है जी, उसी तरह आई एम एलिजाबेथ ऑफ लॉलीवुड। एलिजाबेथ ऑफ लॉलीवुड, क्वीन ऑफ लॉलीवुड कहे ना। ते एलिजाबेथ भी क्वीन ही सी, वो केड़ी बरतानिया च दाने पौंदी सी। लेकिन मीरा जी ये अंजलिना जूली और माधुरी तो रिटायर हो चुकी हैं, आपकी उम्र ही क्या, अभी आपने गोल्डन जुबली की है। गोल्डन जुबली यानी 50 साल। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। Shut up, elder son of Nelson Mandela। मैं तेरे सूट दा रंग वेख के समझ गई सा कि तेनू अकल कोई नहीं। शाहजब मेरी फिल्म की बात कर रहा है, गोल्डन जुबली, क्योंकि सब जानते हैं कि मेरी हर फिल्म ने गोल्डन जुबली की है। फिल्म में आपका किरदार क्या है? मैं टाइटल रोल कर रही हूँ, उसमें मैंने साइको का रोल किया है और इतना डूब के किया है कि फिल्म मुकम्मल होने के बाद मुझे एक साइकिलिस्ट के पास जाना पड़ गया। 6 सेशन लिए हैं मैंने साइकिलिस्ट के। मीरा जी आपकी फिल्म का नाम साइको है, तो आप साइकिलिस्ट के पास क्यों गई हैं? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, जिन्हें एक एक लफ्ज समझाना पड़ता है। बेवकूफ साइकिलिस्ट कहते हैं माहिर नफ्सियात को। मीरा जी वो साइकिलिस्ट नहीं होता, साइकोलॉजिस्ट होता है। बीबी मैं जिसके पास गई थी वो अभी जूनियर है, जूनियर को साइकिलिस्ट ही कहते हैं। ऊपर से उस साइकिलिस्ट ने कह दिया कि मैडम अभी आप 3 महीने कोई काम नहीं करेंगी। कैसे घर बैठूं, प्रोड्यूसर्स ने तो मेरे घर का दरवाजा ब्रेक कर दिया है। हर प्रोड्यूसर आके यही कहता है कि मीरा जी अगर आप मेरी फिल्म में काम नहीं करेंगी तो मेरी फिल्म का बिजनेस सेट हो जाएगा। क्या कह रही है मीरा जी, यानी जिस फिल्म में आप काम नहीं करती वो हिट हो जाती है?
क्या फजूल बात कर रहे हैं आप खुद ही तो कह रही हैं कि प्रोड्यूसर कहते हैं मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा। ओ माय गॉड, मैं किन अनएजुकेटेड लोगों में आ गई। हाय भाई जिस तरह सनसेट हुंदा है सूरज डुबना, इस तरह बिजनेस सेट हुंदा है बिजनेस डुबना। ऐसे गौरी, मुझे तुम जैसे सूटेड बूटेड बंदे से ये उम्मीद नहीं थी। ये तो प्राइमरी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में डूबता है। क्या बात है मीरा जी, 30 साल पहले मैंने आपकी फिल्म देखी थी खिलौना, मैं उसी वक्त आपका फैन हो गया था। 30 साल पहले? मीरा जी, अगर आप उस वक्त 20 साल की भी थी तो गोल्डन जुबली तो आप पूरी कर चुकी हैं। एक्सक्यूज मी, 30 में से 20 निकालने तो बाकी 10 साल बचते हैं। वैसे मैं माफी चाहती हूँ, आपकी मैथ बुक ठीक नहीं है। मैथ बुक? हिसाब किताब। मेरे सारे मोहल्लेदार हर दफा मुझे कहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हों, इलेक्शन में खड़े हों। वो मैंने कहा यार तुम गली में मुझे खड़े नहीं होने देते, इलेक्शन में कैसे खड़ा हूंगा। अच्छा जी, एक पाकिस्तानी कौम का बड़ा अजीबो गरीब मिजाज बनता जा रहा है जी। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी को खबरें देखी होंगी जिससे आपको ये महसूस होता होगा कि अब हम ना जी क्रेडिट लेने के लिए ना दूसरों पे भी चपटे मार रहे होते हैं, हाँ जी। बजाय खुद मेहनत करने के या जो क्रेडिट आपका अपना है वही लेने के, दूसरों की मेहनत और दूसरों की जो अपना क्रेडिबिलिटी होती है उसमें हम डाका मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मतलब वो क्या कहते हैं कि राह जांदे ही लब जावे सानू। हाँ। आपने सोशल मीडिया पर ये देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान में ये जो मुकाबले का इम्तिहान होता है, जी जी। CSS जिसे कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट 17वें ग्रेड के अफसर ताइनात किए जाते हैं, हाँ जी सर। उसका जो इम्तिहान हुआ है इस दफा, उसका जो रिजल्ट आया है वो माशाल्लाह 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 12,792 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था। अच्छा। और तहरीरी इम्तिहान में 12,792 उम्मीदवारों में से पास हुए हैं 355। और आखिरी मरहले में इंटरव्यू ये वो सारा कुछ दे दुआ के जी जी 170 बचे ने। हाय। अच्छा, अब ये जो हाई फाई अफसर लगने के लिए जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। इनकी जो ताइनाती हो रही है, उनको अब ताइनाती के परवाने मिल चुके हैं, रिजल्ट यानी आ गया है। पहले तो मैं उन तमाम उम्मीदवारों को जो 170 बचे हैं बेचारे, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो बड़े बड़े अफसर लगेंगे। अब हमारे मुल्क के अंदर अपना ठंडे कमरों में बैठेंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरेंगे। हाँ जी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि इन पासशुदा उम्मीदवारों में 2 हिंदू कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। जी हाँ, उनमें एक का मेरा ख्याल है नाम है कि जीवन रिबारी और दूसरे खेमचंद जंदौड़ा। मैं अगर गलत नाम ले रहा हूं तो मैं माफी चाहता हूं। वो भी दोनों सिलेक्ट हुए हैं बतौर अफसर। लाइमन, ये हमारे लिए इज्जत की बात इसलिए भी है कि ये जो 2 हिंदू उम्मीदवार पास हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं बतौर ऑफिसर, जी। ये हमारी ये जो अपना अकलियत से मोहब्बत है उसको जाहिर करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो पाई जाती है। हाँ जी। लेकिन असल बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि ये CSS का नतीजा आते ही पाकिस्तान में एक चीज फौरन जिंदा हो जाती है, अकेडमियों की मार्केटिंग। इस इम्तिहान की तैयारी के लिए मुख्तलिफ अकेडमियां खुली हुई हैं। हाँ जी हाँ जी। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ 175 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, लेकिन सैकड़ों के हिसाब से अकेडमियां दावा कर रही हैं कि उनमें से ज्यादा बच्चे उनके अकेडमी के थे। हाय।
हर अकेडमी ने अपने अपने हिसाब से कामयाब उम्मीदवार वंडने की कोशिश की है। सही। किसी ने कहा जी इनमें से 105 उम्मीदवार हमारे स्टूडेंट थे। अच्छा। किसी ने फरमाया जी 99 उम्मीदवार यानी 89 हमारे थे। लो। तीसरी अकेडमी ने ऐलान किया जी 86 हमारे थे। हाय। चौथी ने कहा जी कि 110 की रसीद तो हमारे पास है। पांचवी ने 80 अपने निकाल ली है। हाय। छठी ने पूरी सेंचुरी पूरी कर ली है। अब अगर इन तमाम दावेदारों के उम्मीदवार इकट्ठे किए रह जाएं तो मेरा ख्याल है 12 को 1000 ही बन देने जिन्हें टोटल सन हाय ते पांच ते विचों 170 होए ने। हाय हाय। करिए की एदा यानी आप देखें कि यार आप बजाय मेहनत कराने के स्टूडेंट्स को उनको इस काबिल बनाने के पास हों। हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ पास होए ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚਪੱਟੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। बिल्कुल। सबके दावों से यूं महसूस होता है कि हर कामयाब उम्मीदवार ने एक वक्त में 10-10 अकेडमियों में दाखिला लिया हुआ है। हाय हाय। सुबह एक अकेडमी में ऐसे, दोपहर दूसरी अकेडमी में करंट अफेयर्स, शाम तीसरे अदारे में पाकिस्तान अफेयर्स और रात को किसी ऑनलाइन अकेडमी से क्लासें लेते रहे। हाय। इससे पता ये चलता है कि वाकई कामयाबी के 100 बाप होते हैं। हाँ। यानी जो कामयाब होता है ना, ये कहावत है ना जी कि कामयाबी के तो 100 बाप होते हैं। हाँ। मेरा है जी, मेरा है जी, मेरा पुपी दा पुत्र, मेरा चाचे दा पुत्र है, मेरा मलेदार आ जड़ा हुन फल्ट नहीं होया बोर्ड च लाओ ए मेरे वालिद साहब दी सकी एक कयन लगदी सी। ओदा जेड़ा निक्का जवाई सी ना जी, ओदा जेड़ा अगों बहनोई सी, ਉਹਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਬਹਿਨੋਈ ਲੱਗਦਾ। कामयाब हो जाए सही कोई बंदा। आप माशाल्लाह सारे आर्टिस्ट हैं। जब आप कामयाब होते हैं तो बहुत सारे लोग इन्हों पहला ड्रामा मैं कराया ये मेरे ड्रामे च ने ऐसा रोल किया कि फिर फड़ लो हो गई। ਲੋ ਸੇਲਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अब मेरा मतलब है कि सारे सीनियर्स की इज्जत तो करनी चाहिए, मगर ये तो बात सच है कि कामयाबी के 100 बाप होते हाय हाय हाय। हैं और नाकामी हमेशा यतीम होती है। यानी इन अकेडमियों का असल मसला कामयाबी का नहीं है बल्कि कामयाबी का क्रेडिट लेना है। हाँ जी बिल्कुल। वैसे भी किसी दानिश्वर ने कहा था ना जी कि पाकिस्तान में कामयाबी एक लावारस प्लाट की तरह होती है हाय। जिस पर हर बंदा कब्जा करना चाहता है। बिल्कुल। यहाँ तो बच्चा मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लेना जी तो मोहल्ले की आंटियां तक कह रही होती हैं मैंने पहले दिन ही कह दिया था ये बच्चा बहुत ज़हीन है। दूसरा वाकया इन दिनों आपने देखा होगा, सबकी नजरों से गुजरा होगा कि इंडिया का वो जो आर्टिस्ट है विजय थलापति जी। वो इंडिया के को मेरा हाल तमिल फिल्मों का हीरो शीरो है। हाँ जी हाँ जी। वो सियासत में आया और वो कामयाब हो गया है, बल्कि उसकी पार्टी ने बहुत ज्यादा हासिल कर ली हैं सीटें। जी जी। बड़ा मुझे मजा आ रहा है कि हमारी पाकिस्तानी सियासी पार्टियां अब उसे नोच रही हैं। कोई उसके साथ फोटो बना के पता नहीं AI से या वैसे कहीं उसने को खिंचा ली, वो दिखा रहा है कि ये देखे ये हमारे लीडर का पैरोकार था। हाय। दूसरे कह रहे नहीं जी ने आखिया वो हमारे लीडर को फॉलो करता रहा। यार वैसे तो आप लोग जब आर्टिस्ट की बात होती है तो उसको बेइज्जत करने पे तुल जाते हैं और मुख्तलिफ तज़हीक आमेज अलकाबात से नवाजते हैं। ते वो तो दुश्मन मुल्क का एक एक्टर जीते आए, अब सारे आप उसके रिश्तेदार बनने चल पड़े। हाँ जी। खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करें, आप अपने आप को दुनिया में तमाशा बना रहे हैं। बिल्कुल। क्या आप जो सोशल मीडिया पे ये चीजें डाल रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंचती होंगी? हाँ जी हिंदुस्तानी कौम नहीं वो देखती होगी, पढ़ती होगी। बिल्कुल सर। वो किस तरह तमस्खर उड़ा रहे होंगे हमारा कि यार ये क्या कौम है, ये क्या करती। हाँ जी हाँ जी। भाई हमने तो इससे पहले कभी उसका नाम भी नहीं था सुना। वो किथों तुहाडा यार फॉलोअर हो गया या किथों तुहाडा मुरीद हो गया है। हाँ। वो जित गया उसको मौज लेने दो। अपनी मेहनत करो यार, अपनी अपनी पार्टी के अंदर रह के आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको पसंद करें। बिल्कुल सही। इस तरह के क्रेडिट लेके तो बात नहीं बनती। हाँ जी। लेकिन अजीजी मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई है, उन जाली दानश्वरों को बड़ा अच्छा जवाब मिला है जो कहते थे कि आर्टिस्ट को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और यार इनको छोड़ो, मेरे सारे मोहल्लेदार हर दफा मुझे कहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हों, इलेक्शन में खड़े हों।
वो मैंने कहा यार तुम गली में मुझे खड़े नहीं होने देते, इलेक्शन में कैसे खड़ा हूँगा। नाजरीन, ये था आज का हस्ते हाल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।